Well, CNN News 18 has been getting you images of where exactly the crash took place, what the runway looked like, the tabletop airstrip in Baramati where the plane went eventually down. And these are visuals that we've accessed for you now, which is the site of the accident. This is the tail end, the rear, which eventually broke away from the particular aircraft after it hit the ground. That was it breaking into two, splitting into two upon impact, which eventually went up in a ball of flame. That is what killed all of those people on board that particular Learjet 45, including Deputy Chief Minister of Maharashtra, Ajit Pawar. These are visuals coming in from Baramati on that airstrip where this accident took place. This is that airstrip that you see. This is the part where you can see the plane had actually gone down. There are several locals, eyewitnesses who eventually came to the rescue. They were first responders when the plane actually went down and split into two. That is the runway, and this is where the plane went down, right on the side of it. It is a tabletop runway. We're given to understand that the pilot could not see where the runway was, eventually veered off. There was no contact after a point with the ATC as to what exactly transpired. But these visuals go on to show how far away really the aircraft landed from the airstrip where it was supposed to actually land. You can see the people there around that particular airstrip, around the runway, also gathering, looking at what exactly transpired, trying to help those who probably would have been trapped under the debris. Unfortunately, it was too late to save anyone. Mayuresh, my colleague, now joins us, getting us more details on this. Mayuresh, even as we are getting more details of what exactly transpired, getting a sense of what went down at that tabletop airstrip in Baramati, the family, they're still coming to terms with what exactly happened. Devendra Fadnavis, the Chief Minister, his deputy Eknath Shinde, all in Baramati now? We saw the visuals also that they met the family, and they also basically expressed their grief with the family. But it's a very shocking thing, and what we have been given to understand, even in the visuals also, we can see that a lot of people have gathered outside that Vidya Pratishthan ground where his mortal remains will be kept till 10 p.m. today. Then the mortal remains will be shifted to the Katewadi, which is the native place of Ajit Pawar, where exactly his mother and his family stay. So from 10 p.m. till morning 6 a.m., his mortal remains will be kept at Katewadi, and then again his mortal remains will be brought to the Vidya Pratishthan ground for the final ride. So it's a very emotional moment for the entire family. It's a very emotional thing for the entire family because no one had expected that such kind of a accident or such kind of an incident will take place with Ajit Pawar, because it was unimaginable. And whenever I did try to speak with a lot of close associates of Ajit Pawar who have worked with him, who had basically Ajit Pawar basically gave them strength and showed them that this is the way that they should work. All of them are not in a basically situation or a condition to speak. Whenever I have called throughout the day, they are still crying and they are saying that it's unbelievable that it has happened. We cannot believe it. Absolutely. There is no coming to terms to what exactly transpired this morning. It was going to be a routine flight that Ajit Pawar must have taken many a times going from Mumbai to Baramati. Unfortunately, this ended in his tragic death along with 4 others who were on board that particular aircraft. And these visuals coming in from Baramati show where exactly the impact happened, where exactly upon impact the aircraft broke into two. The debris there strewn across right next to a few meters away, in fact, from the airstrip where it was supposed to land. In fact, my colleague Vivek has been reporting from on ground, getting us a sense of what exactly transpired there, what the situation looked like hours later as investigation teams eventually came in to figure out and piece together the mystery of what exactly led to this cause. Take a look at the special ground report. सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो है बारामती एयरपोर्ट का रनवे। ये देखिए, ये एयरपोर्ट का ये एयर स्ट्रिप है। जो भी फ्लाइट और जो भी सब इसी जगह पे लैंड होती हैं और लैंड होने के बाद यहाँ पे ये रनवे खत्म हो जाता है। अब देखिए, ये जो पूरा इलाका है वो ओपन इलाका है और जहाँ पर आप सामने जो एम्बुलेंस देख रहे हैं वहां पर ये प्लेन जो है वो अजीत पवार का क्रैश हुआ है। जो टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। तमाम जो लोग हैं, जो फायर ब्रिगेड की टीम है और एफएसएल की टीम है, वो मौके पर हैं
और लगातार जैसे से सूचना मिलती जा रही है कि ये स्पॉट है, वहां पे एनसीपी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। जो क्रैश साइट है वो लैंडिंग करते समय जो एयरक्राफ्ट का जो पीछे का हिस्सा होता है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पर पूरी तरह से मलबा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर डीजीसीए की जो एआईबी जो एयरपोर्ट जो इन्वेस्टिगेशन टीम आती है वो यहाँ पे मौके पे पहुंची हुई है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो टेबल टॉप रनवे है, टेबल टॉप रनवे होने की वजह से आसपास जो इलाके हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। अब देखिए ये जो क्रैश हुआ है वो इस जगह हुआ है और साफ तौर पे आप मलबा देख सकते हैं कि जो एयरक्राफ्ट का मलबा है वो पड़ा हुआ है। अब दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा जहां पर हम मौजूद हैं। ये जो सीधा रास्ता जाता है वो एयर स्ट्रिप है, यानी कि रनवे का हिस्सा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये जो पूरा रनवे बना हुआ है वो टेबल टॉप पे बना हुआ है। टेबल टॉप का मतलब होता है कि पहाड़ी इलाकों में अगल बगल के जो इलाके होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और रनवे ऊपर की तरफ होते हैं। ये जो स्पॉट आप सामने देख रहे हैं वहां पर ये पूरा आग लगी थी और पूरा एयरक्राफ्ट जो है वो जलकर खाक हो चुका था। और शुरुआती जांच में ऐसा पता चल रहा है कि जब सुबह ये जब लैंडिंग की कोशिश कर रहा था उस समय फॉग बहुत ज्यादा था, विजिबिलिटी बहुत कम थी। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो पायलट थे उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं मिल पा रहा था कि एयर स्ट्रिप कहां पर है। 8:50 पर इससे बारामती में उतरना था, लेकिन उससे पहले ही जैसे कि 8:45 या 8:50 के आसपास ये एयर स्ट्रिप के पास आता है। और एटीसी से जानकारी मिल रही है कि ये गो अराउंड भी हो गया, यानी गो अराउंड का मतलब है कि जब उसको रनवे नहीं दिख रहा था तो एटीसी से बोला कि आप फिर से घूम के दोबारा कोशिश करें। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं वो एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप से मुश्किल से 10 से 20 मीटर की दूरी पर ये क्रैश साइट है। पूरे एरिया को जो है उन्होंने कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है, क्योंकि देखिए पूरा इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इसमें डीजीसी की टीम है, इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिरकार किस वजह से ये पूरा क्रैश हुआ है। इसलिए आसपास के जो जितने भी लोग हैं उन्हें क्रैश साइट पर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। इंजन की जो टेल है वो मेन पार्ट होता है किसी भी प्राइवेट एयरक्राफ्ट का, वो ज्यादा डैमेज हुआ वहां पर। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं जो अपने कैमरे राजेश को बोलूंगा जूम इन करके दिखाए। दूसरी तरफ देख सकते हैं विंग्स पड़े हुए हैं जो एयरक्राफ्ट के विंग्स हैं। उसके बाद देखिए धीरे धीरे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ की जाएंगे तो इंजन के जो कवर होते हैं, जो सर्कल्स में आप देख रहे हैं वो इंजन के कवर है। और इंजन के कवर के पास एक और साइड में आपको दिखा जो दूर है जहां पे पब्लिक खड़ी हुई है। अगर मैं कैमरे को जूम इन करके दिखाएं तो वहां पर भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कुछ पार्ट्स है वो वहां पर भी पड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये क्रैश हुआ था, क्रैश के बाद बड़ी तादाद में जो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हिस्सों में गिरे हैं। और इस तरीके से पूरा जो एयरक्राफ्ट है वो परखच्चे उड़ते हुए जो डेड एंड है जहां पर ये पूरा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जहां पर मैक्सिमम कैजुअलिटीज हुई है, जहां पे अजीत पवार दादा और अपने उनके एक बॉडीगार्ड और जो 2 कैप्टन और एक क्रू मेंबर थी, उन सबकी जो मौत है वो इसी जगह स्पॉट पे हुई। इस जगह से प्लेन जो है वो आ रहा था, ये लैंडिंग है। और सामने अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो सामने का जो रोड देख रहे हैं, सामने का जो रोड है वो रनवे है। ये बारामती का एयर स्ट्रिप है। बारामती की एयर स्ट्रिप छोटा रनवे है, इसलिए यहाँ पे आईएलएस नहीं लगी रहती, जिससे जो लाइटिंग लगी रहती है वो नहीं लगी रहती। ये रनवे है, रनवे के ठीक बगल में, रनवे के ठीक बगल में ये टेबल टॉप रनवे बनाए गए हैं। और देखिए रनवे के ठीक बगल में तकरीबन यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो 80 से 90 फीट नीचे ये क्रैश हुआ है। यानी कि जो फ्लाइट है, जो एयरक्राफ्ट है वो सामने है। अगर मैं अपने कैम से बोलूंगा कि इस डायरेक्शन से आ रहा था, उसे रनवे पर लैंड करना था, लेकिन फॉग और जो विजिबिलिटी थी वो काफी कम थी। वो रनवे से हटकर बिल्कुल देखिए सामने जो जहां से रनवे स्टार्ट होता है वहां से हटकर वहां पे वो क्रैश होता है। और ये क्रैश साइट है जहां पर मैक्सिमम डैमेज हुआ है, जहां पर एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार जी थे, उनके बॉडीगार्ड थे, 5 लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। और क्रैश इतना भयंकर होता है कि देखिए जितने भी एयरक्राफ्ट के जो परकच्चे हैं वो अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। आसपास के इलाके, अगर मैं जूम आउट करके राजेश अपने कैम को बोलूंगा, देखिए आसपास के इलाकों में कोई भी नहीं है, छोटे छोटे घर बने हुए हैं। इसलिए यहाँ पर जो लोग थे, जो लोकल लोग थे, जो किसान लोग थे, जो लोकल लोग थे, वो सबसे पहले फर्स्ट रेस्पॉन्डर थे, पहुंचे। उन्होंने जो आसपास जो पानी था उसे आग बुझाने की कोशिश की। और जो पहले विजुअल जो मोबाइल्स पे हमें नजर आ रहे थे कि जो लोग थे फायर ब्रिगेड पुलिस प्रशासन से आने से पहले ही जो लोकल लोग थे उन्होंने पूरी मदद की कि जो लोग अंदर इंजर्ड हुए हैं उन्हें किसी हालत में जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। लोकल लोगों ने बताया कि यहाँ पर आग लगी है, धमाका हुआ है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के लोग आए।
जो पुलिस प्रशासन की टीम आई, तमाम प्रशासन यहाँ पे आए। यहाँ से हॉस्पिटल तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी कोशिश की गई कि जो लोग इंजर्ड हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल यहाँ से ले जाया जाए। और देखिए पूरा इलाका, अगर मैं अपने कैन को बोलूं राजेश का, पूरा इलाका आस पास कुछ भी नहीं है आनंद। यहाँ पर जो लोग हैं जो लोग हैं वो भी इक्का दुक्का आपको घर नजर आ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये क्रैश साइट के बगल में सिर्फ एक तबेला मुझे दिख रहा है वहां पर, जहाँ पे कुछ लोग रहते थे। वो लोग सबसे पहले भाग के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। So what exactly happened? What was the reason behind this crash? All of that is being investigated, but condolences are coming in from across all political quarters. Prime Minister Modi too, while addressing the annual NCC rally earlier today, expressed his condolences. He had even called Sharad Pawar earlier this morning and spoken to him and offered his condolences to the Pawar family. Prime Minister Modi there also reminiscing about the contributions that Ajit Pawar had made to the development of Maharashtra and the rest of the country as well. महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं।